हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम रेलवे पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2014 की जून सेशन के जो हिस्ट्री पेपर है, हिस्ट्री पेपर को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हिस्ट्री पेपर में क्या इम्पोर्टेंट था उस टाइम में और आपके टाइम में इस पेपर से क्या कुछ रिपीट होने वाला है, ये सब देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। दोस्तों 1 to 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये पैसेज से दी गई है। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं इसे। In the middle of 14th century of the Christian era, some resembling a volcanic eruption took place in the history of human race. The Hunas, like a veritable stream of lava, issues from their homeland on the northern shores of the Caspian Sea and spread over Europe and Asia. Home, homeless and lawless, they rode their horses awake and asleep. Their fierce yells spread terror whenever they were heard. They engaged all the civilized people of the world in the fearful Tritamiatic war, and whatever they could, they killed, destroyed, burned, and devastated with Dominic ruthlessness in Europe. Attila the Hun brought about the downfall of even the powerful Roman emperor. About AD 455, the Huns began to enter India. Emperor Skandagupta drove them back by the supreme effort. 12 years later, he died. The outputs of the emperor already weighed and offered on further resistance. The barbarian hordes and after passing through Persian and destroying the Kushans, rulers of northwest began to pour into India. A war of succession spread to have followed the death of Skandagupta, awakening the emperor in the hours of his danger. Next in order of succession, five emperors, including Narasimhagupta, Baditya, between AD 500 and 570, held precious Suezabad parts of the empire, which, in spite of its decadence, was still a name of conjurer, with many parts of the emperor outside the bounds of the compact code of the emperor become independent. In Shushrata, a province of the emperor, the Maitraka general practically threw off his allegiance of the death of Skandagupta. By AD 512, the Hunos under Todmana overran North India up to Iran in the Sunga district of Madhya Pradesh. Todman's son Miracula, a veritable terror, spread fire and armies from Punjab to Gwalior, and by AD 525 became the master of a vast territory. Northern Indians soon recovered from the shock of barbarian impact and resisted मिहिर खुला ना। दोस्तों अब जो क्वेश्चन है
पहले हमने जो रेट किया है वहाँ से क्वेश्चन इसमें पुट की गई है। सो ये तो हमने जब पढ़ा था इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया। अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे बार हम इसे पढ़ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, हु वाज द imperial ruler of India in the middle of 4th century AD? तो 4th सेंचुरी एडी में इंपीरियल रूलर कौन था? यहाँ ऑप्शन है चंद्रगुप्ता वन, बी ऑप्शन में है चंद्रगुप्ता टू, और सी ऑप्शन में समुद्रगुप्ता की बात करते हैं, और डी ऑप्शन नान कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब हमने पढ़ा था, यहाँ समुद्रगुप्त की बात हमने मिली थी, समुद्रगुप्त। तो यहाँ क्या है, हु वाज द imperial ruler of India in the middle of 4th century AD? इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। द हुनस were accompanied in India by which other Central Asian tribes? हुन के साथ और कौन सा सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स थे? कुशान्स की बात करते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में गुजरात गुर्जार्स की बात होते हैं, सी में शख्स की बात होते हैं, और डी में पल्लव्स को ऑप्शन में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है गुर्जान्स की जो बात है ये होगा सही ऑप्शन, ये हमने यहाँ पढ़ा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हु ओवरथ्रू द हुन पावर फ्रॉम मालवा? मालवा से हुन पावर को किसने ओवरथ्रोन किया है? तो यहाँ ऑप्शन के तौर पे ए में है स्कंदगुप्त की बात, बी में शाहकारी विक्रमादित्य, और सी में यासुधर्मन, और डी में पुष्यवती की बात होती है। यहाँ सो आंसर क्या है? सी में आंसर होगा, सी में आंसर होगा यशोद बर्मन की बात होती है, ये सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 4 जो क्वेश्चन के 4 को करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, who drove Mihirkulas out of गंगा वैली? गंगा वैली की बाहर उनको किसने ड्रॉ किया है? पहला ऑप्शन है नरसिम्हा गुप्त, और बी ऑप्शन में बुद्धा गुप्त की बात होती है, सी ऑप्शन में स्कंद गुप्त की बात होती है, डी में नॉन ऑफ दिस होती है। सो यहाँ दोस्तों देखिए, ये नरसिम्हा गुप्त की बात हमने यहाँ पढ़ी थी। सो यहाँ आंसर होगा नरसिम्हा गुप्ता। अब बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नीचे दी गई बातों से क्या करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन में बताते हैं कि द डेथ ऑफ स्कंदगुप्ता कोइंसाइड विद द डेथ ऑफ गुप्ता एम्परर। ठीक है, और बी ऑप्शन में क्या है देखिए, बी ऑप्शन में द एम्परर continued but the central control weakened after the death of Skandagupta, और सी में कहते हैं द लोकल गवर्नर्स बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्ता। तो लोकल जो गवर्नर था उस टाइम में वो सब अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया उनके डेथ के बाद में। और डी ऑप्शन में कहते टू द वेस्ट ऑफ काशी द गुप्ता एम्परर exercise their trilior control after the death of स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की डेथ के बाद वो लोग इसमें जो है अपनी जो बिरादरी है, अपनी जो पावर है उसने दिखाई। और यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये जो ऑप्शन है द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त कोइंसाइड विद द डेथ ऑफ गुप्ता एम्परर, ये सही नहीं है, और जो 3 ऑप्शन है ये सही है। चलते हैं दोस्तों फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, रामकृष्ण गोपाला बंदरकार who was a pioneer of modern historiography in
इंडिया बिलोंग्स टू। तो रामकृष्णन गोपाल भांडारकर जो एक हिस्टोग्राफर है वो किस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? यहाँ ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, मार्क्सिस्ट स्कूल के बात होते हैं, बी में रानके स्कूल के बात होते हैं, सी में हेगलियन स्कूल के बात होते हैं और डी में टर्नबी स्कूल की बात होते हैं। सो यहाँ दोस्तों सही आंसर क्या है? रानके स्कूल से वो बिलोंग करते हैं, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 7 पे, जहां मैच लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 की जो है इसे मैच करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पहला जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 दी गई है। यहाँ लिस्ट 1 में पहला ऑप्शन में क्या है? सोना कल्चर, और बी ऑप्शन में निवासियन कल्चर, और सी ऑप्शन में जॉर्ज कल्चर की बात करते हैं, डी में खोदिवार कल्चर की बात करते हैं। तो यहाँ लिस्ट 2 में क्या है? मिडिल पालियोलिथिक की बात करती है, मिडिल पालियोलिथिक कल्चर की, और 2 ऑप्शन में लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, और सी में क्या है? 3 में देखिए न्यूलिथिक कल्चर की बात होती है, और अपर पैलियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। सो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ सोना कल्चर जो है ना फ्रेंड्स, ये लोअर पैलियोलिथिक के साथ जुड़े हुए हैं। सोना कल्चर जो है ये लोअर पैलियोलिथिक के साथ जुड़े हुए हैं। और अब देखते हैं जो ऑप्शन बी है ना दोस्तों, नाविसियन कल्चर जो है ये पहला जो मिडिल पैलियोलिथिक के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सी जो ऑप्शन है बागोड़ी कल्चर जो है, बागोड़ी कल्चर ये क्या है? अपर पैलियोलिथिक के साथ जुड़े हुए हैं। और खालडोयर कल्चर जो है ये 3 कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। सो यहाँ देखिए इससे अगर मिलते हैं तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 8 जो है, 8 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हड़प्पन वेट? हड़प्पा की जो वेट जो है उसका रेशियो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, इसकी सही आंसर होगा दोस्तों 1:2:4:6। ये था हड़प्पन वेट की रेशियो है। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग Paleolithic sites has been the evidence of the use of copper but not stone tools। तो यहाँ क्या होगा आंसर? या आंसर होगा which of the following Paleolithic sites has given the evidence of use of copper but not stone tools। यहाँ आंसर होगा दोस्तों आहार जो है ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अंडर हुज लीडरशिप द बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन इन द ऋग वेदर्स वाज फॉट अगेंस्ट सुधास। ठीक है, किन लीडरशिप के अंदर में ये बैटल हुआ था? पहला ऑप्शन है वैशिष्ट्यों की बात करते हैं ऑप्शन ए में, और दूसरे है विश्वामित्र की बात होते हैं, और सी ऑप्शन में क्या है? कुरु की बात होते हैं, डी ऑप्शन में कुरु की बात होते हैं। यहाँ से ये आंसर दोस्तों ये विश्वामित्र होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 11 पे। Which of the following statement is correct about Sabha and Samiti in ऋग्वेदिक टाइम्स? ऋग्वेदिक टाइम में सभा और समिति के बारे में क्या सही है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ए ऑप्शन में सभा हैज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ general class while Samiti has the representative of elite class। सभा में क्या कहते हैं यार? रिप्रेजेंटेटिव जनरल क्लास के लोग होते हैं, और समिति में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
इलाइट क्लास के लोग होते थे। तो ये पहला बात है, ये मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। आप बात करते हैं सोबा हैज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इलाइट क्लास। सोबा जो है ये इलाइट क्लास की रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, while समिति हैज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जनरल क्लास। समिति जो है ये जनरल क्लास की है, नॉर्मल पीपल की है, जनरल पीपल की क्लास है। ये सही लग रहा है और फिर भी और दोनों जो ऑप्शन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। बोथ सभा एंड समिति इक्वल proportion of representatives, ये सही नहीं है। आप जो डी ऑप्शन बचा है, द मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन समिति is greater than the number of representatives in सभा। नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव समिति, समिति में जितना मेंबर्स थे वो सभा के रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा होते थे, ये भी सही नहीं है। सो दोस्तों ये सही है, सभा हैज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इलाइट क्लास। सभा में इलाइट क्लास की अपर क्लास के लोग होते हैं और समिति में नॉर्मल पीपल जो होते थे इनकी ये असेंबली होते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one labeled as assertion and the other labeled as reason। यहाँ दो स्टेटमेंट दी गई है, पहला जो है उसे assertion के तौर पे माना गया है और दूसरा जो है इसे रीजन के तौर पे माना गया है। तो देखते हैं पहला क्या है। बिम्बिसार was the earliest of the Indian kings to stress the need for ancient administration। Bimbisar was the earliest of king to stress the need for ancient administration। और इसके रीजन क्या माना गया है, रीजन के तौर पे दी गई है, द मिनिस्टर्स ऑफ बिम्बिसार were handpicked and he had reported never to ignore their advice। सो ये जो है फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो दोनों बात की गई है, बोथ ए आर and are true and R is correct explanation। ये दोनों जो बात है बिंबिसार के बारे में ये सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, द proportion of maximum and minimum salary of the government employees mentioned in the अर्थशास्त्र was। अर्थशास्त्र में जो मेंशन की गई है, इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी का रेशियो कितना था। तो 13 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ 6,000:6 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है 4,800:6 की बात करती है और तीसरे जो ऑप्शन है इसमें 4,800:60 की बात करते हैं और डी ऑप्शन में 60,060 की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन सी है ना दोस्तों 4,800:60, ये अर्थशास्त्र में जो मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी की बात की गई है, सैलरी की प्रोपोर्शन, इसमें ये सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। एक तो assertion की तरफ पे दी गई है, पहला जो है ये assertion है, दूसरी जो है ये reason है। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ क्या है। Trading economy began to flourish during the time of बुद्ध। ट्रेडिंग इकोनॉमी जो है ये बुद्ध की समय से ये डेवलप होने लगा, ये फ्लोरिश हुआ। इसके रीजन के तौर पे क्या कहा, द जोइंस लार्जली एंटर्ड इनटू ट्रेड लिविंग एग्रीकल्चर। जो जोइन से ये ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग में आ गया एग्रीकल्चर को छोड़ के।
ठीक है, ये दोनों, एक है assertion, दूसरा है रीजन। रीडिंग द above statement and select the correct answer from the codes given below। यहाँ कोड के तौर पे क्या है, ए पे क्या कहा, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में कहा ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। सी में क्या है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। सी में ए को ट्रू माना, आर को फॉल्स माना। डी में ए फॉल्स है और आर को ट्रू माना। सो हमने यहाँ जो पढ़ा है इसमें क्या पाया, इसमें जो ट्रेडिंग इकोनॉमी बिगन टू फ्लरिश ड्यूरिंग टाइम ऑफ बुद्ध जो कहा है ये बिल्कुल सही है। बुद्ध के टाइम में जो ट्रेडिंग इकोनॉमी है वो डेवलप हुआ है। इसके कारण के तौर पे जो कहा, जो द जोइंस लार्जली एंटर्ड इनटू ट्रेड लिविंग एग्रीकल्चर, वो जोइंस के टाइम में जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर को छोड़ के ट्रेडिंग में आ गया, ये भी सही है। सो इसकी पहला सेक्शन के जो रीजन है ये बिल्कुल सही है। सो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन होगा, ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following rulers is claimed to have checked the maximum of burners? Check the mixture of burners. Which one of the following ruler is claimed to have checked the mixture of burners? Burners की mixture की बात कहती है। Sorry friends, तो यहाँ आंसर की ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं, और नंबर 2 जो बी ऑप्शन है वासुदेव कन्वा की बात होते हैं, और सी में गुप्त गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात होते हैं, वन की बात होती है। या सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये सही आंसर है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो रोलर है क्लेम टू हैव चेक द मिक्सचर ऑफ वर्णों की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 मैच करना है। लिस्ट 1 में किंगडम्स की बात करती है, लिस्ट 2 में कैपिटल्स की बात होती है। चलिए देखते हैं लिस्ट 1 में क्या है। पहला जो है कलिंग की बात होती है, दूसरे में अवंती की बात होती है, और तीसरे में असाका की बात होती है, और डी ऑप्शन में सोविरा की बात होती है। कैपिटल्स की बात करेंगे आप, कैपिटल 1 में क्या है, रुनका होती है, 2 में क्या है, पोटवान की बात होती है, 3 में मोहिशांति की बात होती है, और 4 में दंतापुरा की बात होती है। तो आप देखते हैं दोस्तों किसके साथ क्या मिलती है। पहला जो है, पहला देखिए जो 16 में जो है कलिंगा की जो बात होती है ये दंतपुरा के साथ मिलती है, इसके कैपिटल है। और जो है अवंती है, ये अवंती के साथ महिष्मति की जो मैच करते हैं। और अशोका जो है ना, इसके साथ ओतोना की बात होती है, और सोवीरा के साथ क्या है, रोड का मैच होते हैं। सो यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो ये डी ऑप्शन सही निकला। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। ये भी एक मैचिंग है फ्रेंड्स। देखिए, टाइप ऑफ स्टोन्स विद लिस्ट टू मॉन्यूमेंट्स एंड सिलेक्ट देयर करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप्स गिवन। तो यहाँ पहला जो लिस्ट है इसमें स्टोन्स की बात करते हैं, दूसरा जो लिस्ट है इसमें मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्या है, ग्रेनाइट की बात होते हैं ए में, बी में होते हैं रेड सैंडस्टोन की, और सी में सीस्ट की बात होती है, डी में सैंडस्टोन की बात होती है। लिस्ट 2 में क्या है,
मथुरा की बात होती है, 2 में सारनाथ है, 3 में महाबलीपुरम है और 4 में बामियान होती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ किसके साथ क्या मैच होते हैं। देखिए ये ग्रेनाइट जो है ना दोस्तों, ग्रेनाइट जो है इसके साथ महाबलीपुरम की जो है ये ग्रेनाइट की है। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम और रेड सैंडस्टोन है ना फ्रेंड्स, ये मथुरा के साथ जो मिलते हैं, रेड सैंडस्टोन जो है मथुरा के साथ। और सिस्ट जो है फ्रेंड्स, देखिए सिस्ट के साथ बामियान की मैच होते हैं और सैंडस्टोन जो है ये जो लास्ट रिमेनिंग है ये सारनाथ के साथ मैच होते हैं। सो यहाँ भी क्या होता है आंसर, यहाँ भी आंसर डी होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। Which of the following text describe the corrupt practice of the Kabbalists, Pushyamitras and Buddhists? उनकी जो करप्ट प्रैक्टिस के बारे में कौन सा टेक्स्ट में, कौन सा किताब में डिस्कस की गई है? पहला ऑप्शन है महावीर चरित्र और दूसरा ऑप्शन है माता विलासा और तो सी ऑप्शन जो है मीड चक्रा टीका की बात होती है और डी ऑप्शन में उत्तर रामचरित के बात होती है। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मतविलास जो है ना, मतविलास इसके साथ ये जो है क्या है कापालिक्स और पुष्यमित्र और बुद्धिस्ट का जो करार प्रैक्टिस की बात है ये यहाँ वर्णन की गई है। बात करते हैं आप नंबर 19 की। The Padirupattu is a collection of poems in praise of which of the following? ये जो पादुरुपत्ति है ना, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये कुछ कविताओं की संग्रह है। ये किन के साथ जुड़े हैं? चेरे के साथ जुड़े हैं, चोला के साथ जुड़े हैं या कदम्बे के साथ जुड़े हैं या डी ऑप्शन में है पांडे की बात होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ ये चेरा के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। गिवन बिलो आर टू स्टेट्समैन, वन लेवल assertion, एक assertion की एंड द अदर इज रीजन। तो assertion के तौर पे देखिए द इंडियनाइजेशन ऑफ द शॉप्स वाज accelerated by their marriage contacts in India। जो शॉप जो है ना ये इंडियनाइज कैसे होती है, ये मैरिज के तौर पे वो इंडियन के साथ मैरिज के संबंध में आके ये इनकी इंडियनाइजेशन हुआ है। अब रीजन की बात करते हैं तो रीजन में क्या है, सातवाहन रूलर सातकर्णी वाज द सन इन लॉ ऑफ शक कस्तर्प रुद्रमन रुद्रदमन की है, शौक का शब्द रुद्रदमन की है। तो यहाँ सातवाहन रूलर जो सतकर्णी है ये सोनिल्लो था और रुद्रदमन की। तो ये दोनों की बात होते हैं, देखते हैं ये इसमें क्या सही है। 20 जो ऑप्शन है ये जो है ये सही है। इंडियनाइजेशन अब जाओ मैरिज के थ्रू पे बहुत आगे चला है और इसके रीजन जो कहा है स्वर सातकर्णी जो है सरमंगलों की बात करते हैं ये भी सही है। सो ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ मैचिंग है, यहाँ एक जो मैचिंग है इसे आप हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो लिस्ट है इसमें किन की बात करते हैं, दूसरी लिस्ट में क्या है इफिएट की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ फूड गिवन बिलो, किंग इफिएट। तो पहला ऑप्शन में ए में क्या है समुद्रगुप्तों की बात होती है, बी में महेंद्र वर्मन फास्ट की बात होती है, सी में पुलकेशिन सेकंड की बात होती है और डी में सिंधु राजा की बात होती है।
इफियत की तरफ सत्राश्रय की बात होती है, पराक्रमण की बात होते हैं और निवास स्थानक की बात होते हैं, विचित्र चित्रों की बात होती है। तो देखिए यहाँ जो है इनके साथ किसकी मैच बनता है। यहाँ देखिए समुद्रगुप्त जो है ना फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के साथ जो है पराक्रमणक जो है ये समुद्रगुप्त के साथ मैच होते हैं। महेंद्र वर्मन वन जो है महेंद्र वर्मन वन के साथ विचित्र चित्र जो है ना इसकी मैच होते हैं। तो और जो बात है पुलकेशिन टू जो है ये सत्ताश्रय के साथ मैच होते हैं और सिंधु राजा जो है इनके साथ निवासन शंका की मैच होते हैं, यानी यहाँ ऑप्शन ए बन जाता है। आप बात करते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर जो क्वेश्चन है, which of the following is not correctly match। यहाँ एक के ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं हो पाया है, उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। उपमितव्य प्राणचक्था जो है ये इसके साथ उदयंत सूर्य की मैच की गई है और पद्म पुराण के साथ रवि स्नेहा की बात की गई है और सी दिव्य प्रतीक्षा से साथ ठाकुर फिरो की बात की है और डी में यास्त लाचिका मुख के साथ समुद्र की मैच की गई है। यहाँ देखिए यहाँ जो है उपोत्तिमा के साथ उदयन की बात कही है, ये सही नहीं है। पद्म पुराण के साथ रवि सिन्हा की जो मैच है ये सही है और द्रव्यप्रक्रिया के साथ ठाकुरा फेरू की जो ये भी सही है। यास्थालिका मफो के साथ सोमदेव की जो ये भी मैच सही है। आप बात करते हैं मैच नंबर 23 की। मैच लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 की मैच करना है। सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द टूल्स गिवन। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2। तो अब लिस्ट 1 ए में क्या है, सर्कुलर टेम्पल प्लान की बात करते हैं। बी में क्या है, स्टार टेम्पल की बात होती है और सी में रेक्टेंगुलर टेम्पल प्लान की बात होती है और डी में पॉलीगोनल टेम्पल प्लान की बात होती है। लिस्ट 2 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ टेम्पल नंबर 1 में क्या है, पहला जो है वन ऑप्शन में टेम्पल नंबर 17 एट सांची की बात होती है। 2 ऑप्शन में विराट एट जयपुर की बात है। 3 में साउथ कोशल टेम्पल की बात होती है और 4 में वैशाला टेम्पल की बात होती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ सर्कुलर टेम्पल प्लान जो है ना फ्रेंड्स, ये विराट एट जयपुर के साथ मैच करते हैं और अब स्टार प्लान जो है ना फ्रेंड्स, स्टार टेम्पल प्लान जो है ये 3 के साथ साउथ कोसल टेम्पल की साथ मैच करते हैं। अब जाके जो रेक्टेंगुलर टेम्पल प्लान जो है, रेक्टेंगुलर टेम्पल प्लान इसके साथ टेम्पल नंबर 17 एट सांची की मैच होते हैं। ठीक है, तो अब बच गया एक है पॉलीगोनल टेम्पल प्लान, ये क्या है, ये वैशाला टेम्पल के साथ मैच होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 24। देखिए, the ruler of which dynasties of the Deccan have been described by the Arab writers as one of the 4 great sovereigns of the world। तो क्या कहा है, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टीज, कौन से डायनेस्टीज की रूलर डेकान की have been described by the Arab writers one of the 4 great sovereigns of the world। तो विश्व में सबसे
ग्रेट सब रीजन है उनमें कौन सा इंडियन रूलर की, कौन सा डायनेस्टीज के रूलर की बात की गई है। या आंसर के ऑप्शन में पहले देखिए राष्ट्रकूट ऑफ मायांकित की बात करते हैं, बी ऑप्शन में चालुक्य ऑफ बातापी की बात होती है, सी में चालुक्य ऑफ कल्याणी की बात होती है और डी में मौर्य ऑफ कंका की बात होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो सही आंसर है राष्ट्रकूट ऑफ मायांकित की जो बात है ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर। यहाँ भी क्या है मैच टेक्स्ट वन और लिस्ट टू में क्या है टेक्स्ट है, इसमें कंटेंट की बात होती है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ टूल्स गिवन बिलो। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। पहला ए में गोधाबू की बात होती है, बी में नागानंद की बात होती है, सी में पुरनाउर की बात होती है और डी में आगुनाउर की बात होती है। और कंटेंट में पहला ए के जो है नंबर वन में 400 लाभ लिरिक्स की बात होती है, टू में एक्सप्लॉइट्स ऑफ योसो वायरमैन की बात होती है, 300 कन्ना पूजा और थर्ड में 400 poems इन फेस ऑफ किंग्स की बात होती है, फोर्थ में स्टोरी ऑफ बुद्धिसत्ता जन्मोत्सव की बात होती है। तो यहाँ मैच किसके साथ किसकी होती है, इसमें हम बात करते हैं। देखिए बुधाबो जो है ना इसके साथ जो 2 नंबर ऑप्शन है एक्सप्लॉइट ऑफ योस बार्मन किंग ऑफ कन्नाकुजा की जो है मैच ये होता है। आप क्या है आप बात करते हैं नागानंद की। नागानंद जो है ये स्टोरी ऑफ बोधिसत्ता जीमोत्वाहन जो है इसके साथ इसकी नागानंद की मैच बन पाते हैं। ठीक है, तो आप दो हो गया। अब नेक्स्ट रिमेनिंग जो है कुरुनोरो की जो बात है ये 400 poems इन प्राइसेस ऑफ किंग्स ये सही है और ऑन कानून जो है ये 1 नंबर 400 लाइव लिरिक्स के साथ मैच होते हैं। सो आंसर क्या बनते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 25 के आंसर बनते हैं सी नंबर। ठीक है, 26 क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप which of the following statements are correct, कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए है, यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर वन में क्या है, इन दैट बिल्डिंग द तुर्क सुल्तान्स यूज द आर्च एंड डोम ऑन ए वाइड स्केल। ठीक है, बिल्डिंग में आर्च और डोम को तुर्क सुल्तान ने ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। नंबर टू में क्या, नाइदर द आर्च नोर द डोम वाज ए तुर्किश और मुस्लिम इनोवेशन। ये दोनों आर्च और डोम जो है ये दोनों तुर्किश की भी नहीं है, मुस्लिम्स की भी इनोवेशन नहीं है। और थर्ड जो है 3 नंबर में द तुर्क्स यूज फाइन लाइन मोर्टार इन द बिल्डिंग। तो तुर्क जो है ये फाइन लाइन की मोर्टार को यूज करते हैं। और फोर में क्या करते हैं, तो द तुर्किश रोलर्स दे डोंट यूज salab and beam mentioned in the building। तो तुर्किश जो है वो स्लेब और बीम्स को अपनी बिल्डिंग्स में क्या है यूज नहीं करते थे। तो क्या हो सकता है आंसर, यहाँ देखिए यहाँ in their building the Turks Sultan used the arch and dome on their wide scale, ये सही है। और ऑप्शन टू में देखिए नाइदर द आर्च नॉट द डोम वाज ए तुर्किश और मुस्लिम इनोवेशन, ये भी उनका इनोवेशन नहीं था फिर भी उन्होंने इसे यूज किया है। और थर्ड में क्या देखिए द टर्क्स यूज फाइन लाइन मोर्टार इन देयर बिल्डिंग, ये भी सही है।
लेकिन ये जो है डिडंट यूज 11 बीम्स इन देयर, ये सही नहीं है। सो आंसर हुआ सी नंबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, consider the following statement about the agrarian system under the Delhi Sultanate of Mughal Empire। तो दिल्ली सुल्तानियत में मुगल एम्पायर की जो कृषि की जो व्यवस्था है उनके बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, पहला जो है अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज टैक्सेस कॉल्ड चारिर एंड भारी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चारिर और गारिर जो टैक्स है इसे इम्पोज किया है। नंबर 2 जो है मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोज एडिशनल सेसेस कॉल्ड अबवास ऑन द पेशेंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने अतिरिक्त जो सेस लगाया उसे अबवास कहते थे। और थर्ड ऑप्शन में कहते हैं अंडर अकबर जाबत सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट वाज फर्दर डेवलप्ड एंड इट कैम टू बी कॉल्ड एज दससाला। तो अकबर ने जो जाबत सिस्टम रेवेन्यू पे लगाया उसे क्या है दससाला कहते थे। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है जहांगीर इंट्रोड्यूस द नासाक सिस्टम ऑफ असेसमेंट। जहांगीर ने नासाक सिस्टम को असेसमेंट के लिए यूज किया है। सो यहाँ आंसर क्या हो सकते हैं? यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो अलाउद्दीन इम्पोज टैक्स कॉल्ड चारिर और गारिर ये सही है। और दूसरी जो ऑप्शन है देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोज एडिशनल सेसेस कॉल्ड अबवास और पेशेंट। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टैक्सेस लगाया उसे अबवास कहते हैं, ये भी सही है। और थर्ड जो है अंडर अकबर जाबत सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट वाज फर्दर डेवलप्ड एंड इट केम टू बी कॉल्ड दसला। ये दसला बंदोबस्त की जो बात है ये क्या है अकबर के जाबाज सिस्टम की जो एक रूप है। जहांगीर इंट्रोड्यूस द नासाक सिस्टम ये सही नहीं है फ्रेंड्स। सो 1 2 3 जिसमें है यहाँ बी में है ये सही आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्या 28 में तारीखी फिरोजशाही आर रिटन बाय। तारीखी फिरोजशाही जो है ये किसने लिखा है? जाहिरुद्दीन बार्नी एंड अमीर खसरू की बात करते हैं। ए ऑप्शन में जाहिरुद्दीन बार्नी एंड समासी सीजार आफिफ की बात होती है। और सी में समासी सिरा एंड आफिफ एंड इसामी की बात होती है। डी में समासी सिराज आफिफ एंड मिनहाज सिराज की बात होती है। सो यहाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ सही ऑप्शन है बी, जो तारीखी फिरोजशाही ये क्या है जियाजुद्दीन बार्नी एंड समासी सारिस आफिफ ने किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे। पोस्ट ऑफ दीवान सागिद एंड Muharrir should be given only to Hal-e-Qalam and whose ancestors have served rulers and amirs। तो यहाँ जो है ये दीवान साहिद एंड मुहारिर जो पोस्ट है ये आल ही गुलाम को दी गई है, जो एंसेस्टर था जो लोग रूलर की क्या है आमिर के साथ काम करते हैं। तो हु एक्सप्रेस द अबव व्यू, ये जो व्यू है ना ये किसने दी है? तो यहाँ देखिए पहला जो ऑप्शन मिन्हास उस सिजार है और बी ऑप्शन में जियाउद्दीन बार्नी की है और सी ऑप्शन में फकारी मुदाबिर की है और डी ऑप्शन में सुल्तान
फिरोज तुगलक की है। ये हाली जो आंसर होगा ये फखरी मुताबिर की है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ भी मैच है। देखिए लिस्ट वन के साथ क्योंकि मैच करना है। लिस्ट वन में सफिशिएंस की नाम दी गई है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी की बात की गई है। ए में क्या है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं। बी में क्या है, शेख बहाउद्दीन जकारिया की बात होती है। सी में शेख फरीदुद्दीन की बात करती है। मुसादुद्दीन की सरकार की बात करती है। और डी में क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटर्स में होते हैं क्या, दिल्ली, अजोदान और मुल्तान और अजमेर है। तो ठीक है, देखते हैं अब किसके साथ किसके मैच होते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, शेख मोजाउद्दीन चिश्ती जो है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये जो है अजमेर के साथ जुड़े हुए हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो है ये अजमेर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया जी जो है उनकी संबंध क्या है, मुल्तान के साथ था। शेख बहाउद्दीन जकारिया की संबंध मुल्तान के साथ था। आप शेख फरीदुद्दीन मसूद गुंज ईसा खान की जो संबंध है ये अजदान के साथ थे। और लास्ट में जो है शहीद निजामुद्दीन औलिया जो है ये दिल्ली के साथ संबंध था। तो ये इनका क्या है, आंसर बनेगा क्या, आंसर सी होगा इसके आंसर। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में। आभासी खाम इज, ये क्या है, बाइलिंगुअल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। और बी ऑप्शन में है रिकॉर्ड्स ऑफ मनसबदार्स। सी ऑप्शन में क्या है, जायगीर रिकॉर्ड्स। और डी ऑप्शन में रिकॉर्ड्स ऑफ रोजिनादार ट्रोपर्स। तो यहाँ क्या हो सकता है आंसर दोस्तों, देखते हैं। ये पहले है, ये बाइलिंगुअल रेवेन्यू रिकॉर्ड से Kazakh Kaham is bilingual revenue record. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की। Which of the following medieval Indian ruler founded the city of Agra? medieval ruler कौन से ruler ने आगरा सिटी को फाउंड किया है? पहला ए ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक की बात होती है। बी में होते सिकंदर लोदी की बात। सी में होते शेरशाह सूरी। और डी में अकबर की बात आती है। तो यहाँ क्या होगा आंसर, जो मिडिवल इंडिया रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, आगरा सिटी को किसने फाउंड किया है, किसने बनाया? सिकंदर लोदी जी ही जो है मिडिवल रूलर थे, वो आगरा सिटी को बनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 33। Which of the following statement is correct? यहाँ चार स्टेटमेंट है, इसमें से एक स्टेटमेंट सही है। वो सही स्टेटमेंट कौन सा है उसे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। Bahmani ruler Firuz Shah was called Wali on account of his association with Sufi song Gesu Darja। तो उन्होंने तो क्या है, बहामनी रूलर फिरोज शाह वाज कॉल्ड वाली, उसे वाली कहते थे क्योंकि उनकी जो एसोसिएशन था, संबंध था सुफी सिंह केसु दर्जा के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सही नहीं है। आप देखते हैं फ्रेंड्स, फिरोज शाह बहामनी वाज डिफीटेड बाय विजयनगर रूलर देवराज वन। ये सही है फ्रेंड्स।
देखिए नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या है। अहमद शाह बहामनी वन शिफ्टेड द कैपिटल फॉर बुलबार्ड टू वारंगल, ये सही नहीं है। अहमद शाह बहामनी वन एनकरेज द परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड बिल्ड एन ऑब्जर्वेटरी एट दौलताबाद, ये भी करेक्ट नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ भी 4 स्टेटमेंट है, यहाँ एक स्टेटमेंट सही नहीं है, उस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है, गुरु नानक वाज थोरोली फेमिलियर विद द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव arrangement made by the Afghan rulers, particularly in Punjab. गुरु नानक जो थे वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है अफगान रूलर्स की, स्पेशली पंजाब में, उनकी इसके बारे में पूरा जानकारी थे। ये दोस्तों ये बहुत ही सही बात है। और बी ऑप्शन में क्या देखिए, ही व्यूड बाबर्स इन्वेडिंग आर्मी एज ए मैरिज पार्टी ऑफ सिन, तो उन्होंने बाबर्स इन्वेडिंग आर्मी को मैरिज पार्टी ऑफ सिन के रूप में, मैरिज पार्टी ऑफ सिन के रूप में देखा है, ये भी बहुत सही है। सी ऑप्शन क्या है, इट वाज his conviction that God has no caste, he gives no consideration to caste, उन्होंने देखा है कि गॉड की कोई कास्ट नहीं है, he gives no consideration to caste, क्योंकि गुरु नानक जी खुद कास्ट को कंसिडर नहीं करते थे। ये भी सही है। जो डी ऑप्शन था, ब्राह्मण एंड Khatri are not a Brahman and Khatri are not a part of oppressive establishment, ये सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35, which of the following statements are not true, इसमें भी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। शेरशाह सूरी built a new road from Lahore to मुल्तान, शेरशाह सूरी ने एक नई रास्ता बनाई जो लाहौर से मुल्तान जाती थी, ये सही है। और यहाँ टू में देखिए, ही ousted मिर्जा हैदर दौलत फ्रॉम कश्मीर, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या है, थ्री ऑप्शन में, आफ्टर द कॉन्क्वायर ऑफ मेवाड़ ही अटैक गुजरात, ये भी सही नहीं है फ्रेंड्स। और डी ऑप्शन पढ़ते हैं, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा, ये सही है। तो फ्रेंड यहाँ 1 और 4 नंबर सही है, 2 और 3 नंबर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर, अकबर के बारे में जो स्टेटमेंट्स है इसे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, देखिए व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, यहाँ करेक्ट जो आंसर है इसे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। द concluding portion of Aini Akbari contains an extensive account of the thoughts and customs of India. आईनी अकबर की जो कंक्लूजन शेष विशेष में क्या है, इंडिया की थॉट्स और कस्टम के बारे में बात की गई है, ये सही है फ्रेंड्स। और 2 में क्या है, शेख Faizi was introduced by Akbar to undertake the translation of Upanishad in Persian. शेख फाइजी को उपनिषद को ट्रांसलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है, यह सही नहीं है। अकबर्स प्रेफरेंस फॉर
monogamy was first expressed in 1578 in a conversation with Sheikh Ibrahim Sher Hindi। ये भी दोस्तों ये फ्रेंड्स ये सही है, वो मोनोगामी के बारे में प्रेफरेंस देते थे, तो ये सही है। और नंबर 4 में जो है नहीं, सॉरी दोस्तों, ये सही नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। कन्वर्शन कन्वर्सेशन में ये प्रकाश नहीं था, ठीक है दोस्तों, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन 4 जो है, Akhar issued on an order in 1562 to 63 that women and children should not be enslaved with throats, raided, rebelled or defied village। ये सही है फ्रेंड्स, सो ये सही नहीं होगा। 1 और 2 जो है ये दोनों ऑप्शन सही है, ये करेक्ट है। बात करते हैं दोस्तों 37 क्वेश्चन को लेके। Who among the following religious groups introduced printing press in India in 1557? 1557 में कौन सा रिलीजियस ग्रुप ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया है? ठीक है, तो यहाँ फ्रांसिस्कन की बात होती है ऑप्शन ए में, बी में डोमिनिकन की बात होती है, सी में जेसुइट्स की बात होती है, डी में प्रोटेस्टेंट मिशनरीज की बात होती है। यहाँ फ्रेंड्स यही ऑप्शन होगा जेसुइट्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 38 में। Which Mughal painter was unrivaled in depicting animals? ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन मीर सैयद अली की बात होती है, बी में बसवाना की बात होती है, सी में उस्ताद मंसूर की बात होती है, डी में अबुल हुसैन की बात होती है। तो यहाँ जो सही आंसर है उस्ताद मंसूर जो है, ये है मुगल पेंटर एंड रिवील द डिपिक्टिंग एनिमल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 39 जो है, ये आज की लास्ट की डिस्कशन होगा। 39 given below are two statements, one labeled as assertion and other is reason। तो assertion के तौर पे क्या है, the East India Company eliminated their Portuguese and Dutch trade rebels by the end of 17th century। ईस्ट इंडिया कंपनी डच के साथ जो रेबेल्स है अपनी जो उसे एंड कर दिया 17th सेंचुरी में कि एंड की तौर पे। और रीजन क्या है, द इंग्लिश ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एट चीपेस्ट। तो यहाँ रीजन के तौर पे कहा कि क्योंकि उन दोनों के बीच में जो विवाद है बिजनेस को लेकर उसे बंद हो गया, इस कारण से जो इंग्लिश ट्रेडर है उनकी जो प्रोडक्ट है ये काफी अच्छा है, इसके लिए उन दोनों पार्टीज के बीच में जो विवाद है वो बंद हो गया। तो यहाँ देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अबाउट टू स्टेटमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन विल। यहाँ जो ऑप्शन है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। both A and R are true but R is not correct। तो यहाँ देखिए, इसमें ये दोनों से एक आंसर होगा। उस टाइम की 2014 की जो यूजीसी नेट है ना फ्रेंड्स, इसने दोनों आंसर को सही माना है और जो सभी लोगों को क्या है इसके ऊपर मार्क दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिस्कशन है हिस्ट्री की जो सब्जेक्ट की डिस्कशन है, तो आज यहाँ क्लास खत्म करता हूँ। फ्रेंड्स, हंसते रहिएगा, बहुत खुश रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे दूसरे क्लास में।